Hello everyone, I am Anmol Bapat and welcome to Whale Capital. This is another video that where we are covering Nifty and Bank Nifty analysis. This is going to be a continued experience that you're going to have. I will be giving you my insights on what Nifty and Bank Nifty has done in the past week and what it can do in the next week. Uh, so let's get started with Nifty. As you see, I already have it on my screen over here. Uh, so, I usually write down my things. So if you're wondering what am I looking at down here, it's this. So Nifty's current level is around 23, 151, and uh, if you have been trading and if you were checking your portfolio in the past week, then I feel bad for you because I was also sad. But this is an opportunity for the traders who do trade. I don't. I'm not telling anyone to start trading on anything. But if you're trading, then this video will be helpful for you. Helpful for you. So the next key level that I am talking about in Nifty is around this level. 22,800 is the next support level that could play out. The major resistance, I don't think we will be seeing the next resistance very soon, but I hope we do. It's this 23,400. These levels are the key levels that I'm talking about. One key support level is where Nifty is currently. 23,120 is a strong support. Could be historically, I have analyzed it. So that could also play out. So if we see that this level, this is one support level that could be seen in Nifty. Uh, Apart from that, RSI is at 24.15, as you can see here. 24.15, which is close to 30, is extremely oversold. The market looks extremely oversold, but RSI is such that as an indicator is such that it can stay oversold for a long period of time. So one, even if it is showing an oversold, doesn't mean that it will change its direction. तो अगर तुम देख रहे हो RSI भी 24 है, मार्केट भी गिरा है, अ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर तुम सोच रहे हो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आ सकता है, तो ऐसा तो नहीं है अभी करंटली बिकॉज वॉल्यूम्स आर ऑल्सो हाई व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग. तो रिवर्सल के लिए अभी थोड़ा रुक जाओ. अ, अभी बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. अभी निफ्टी ही देखो तुम 2% लास्ट डे में गिरा था कल, फ्राइडे के दिन. अ, एक और बात है, मैं अभी देखते समय एनालिसिस करते समय मूविंग एवरेजेस देखता हूँ. सो मूविंग एवरेज 9, 10, 20, 50, 100, 200 सबके नीचे है. और ये जो है डेथ क्रॉस ओवर, अभी तुमको यहाँ से देख सकते हो तुम, जो 10 डे मूविंग एवरेज है वो 200 के नीचे आ रहा है, विच इज़ अ वेरी हाई, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल. अगेन निफ्टी जो है वो 25% नीचे आ चुकी है उसके ऑल टाइम हाई से, उसके जो 52 वीक हाई था उससे. अभी इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? Such oversold market means that a short-term buying could happen. But again, I'm focusing here on short term. अगले एक हफ्ते के अंदर थोड़ा बाइंग हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है. बट अभी जैसे जैसे सिचुएशंस चल रहे हैं जियोपॉलिटिकली, कह दो वॉर है और इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है. सो इट कुड हैपन कि मार्केट एक हफ्ते के लिए थोड़ा ऊपर जाए, बट इट विल कंटिन्यू इट्स बेरिश ट्रेंड अगेन. अभी तुमको न्यूज़ में जब आना चालू हो जाएगा कि मार्केट तो इससे ज़्यादा गिरेगा, दैट इज़ द टाइम टू बाय. दैट बिकॉज जब पूरा ओवरऑल मार्केट में जब बाइंग का ये आता है कि अ, अरे मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, दैट इज द मोमेंट वेयर इंस्टीट्यूशन से बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एवरीवन हैज accumulated stocks. They have added more stocks to their portfolio and that is where they start कि अभी यहाँ से रिटेलर को पागल बनाना है, इसमें और सस्ते में मिलेगा, और फिर मार्केट ऊपर जाता है. एंड दैट इज वेयर retailers like us get stuck. I have been in this industry for 2 years. I've worked as a trader for 2 years. इसलिए मैं जानता हूँ कि ये ट्रेड इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं. ओके. सो अगेन, शॉर्ट टर्म बुलिश हो सकता है, ओवरऑल बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है. तुमने देखा है तुम्हारा पोर्टफोलियो लाल होते जा रहा है. आई आई गेट इट. सो निफ्टी के की लेवल्स अगेन 23,120 नेक्स्ट सपोर्ट जो अभी करंटली लेवल है. उसके बाद है 22,800 नेक्स्ट सपोर्ट.
and next major resistance is 23,400. Let's get on to bank nifty. अभी बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जब भी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये जो सेक्टर है ये ऐसा है कि सबसे पहले गिरना ये चालू करता है. एंड इफ यू सी बैंकिंग सेक्टर एंड बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स is a monkey when you're comparing it with broader indices like Nifty 50 और Sensex. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्विंग्स आते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं. अ, तुम निफ्टी देखोगे कि 1% 2% मूव करेगा, ये 2-2 2.5-3% तो ऐसे ही मूव कर जाता है. और तुम अभी ये देख रहे हो ये फॉल भी कितना फास्ट था. निफ्टी का इज अ लिटिल बिट ग्रेजुअल फॉल, बट बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी वॉलेटाइल. इसमें जो मूवमेंट्स आते हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी से आते हैं. इसलिए इसका अभी आरएसआई भी तुम देखोगे तो 23 पे बैंक निफ्टी का. बेरिश पहले से ही था बैंक निफ्टी, फिर भी थोड़ा बुलिश था. बट अभी निफ्टी गिरी है, उसका 24 के आसपास है. बैंक निफ्टी इतना फास्ट गिरा है कि उसका 23 के आसपास आरएसआई है. अब वही है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है अभी इसमें कम स्टॉक्स है एंड एक ही सेक्टर के हैं, तो वो जब फॉल आता है तो सभी सेक्टर सभी स्टॉक्स में आता है एंड इट फॉल्स फास्ट. तो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स जो होंगे ऑप्शंस और फ्यूचर्स वाले वो जानते होंगे कि ये कैसा है. अगेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. अगेन या so that was it for this video. Reversal के लिए uh, do follow me. I put shorts regularly regarding that when the reversal is. और जो swing आएगा अगेन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो दिस कुड हैपन कि अब बैंक निफ्टी के मेजर की लेवल्स जो है वो देखते हैं. 53 600 जो है अभी करंट जो लेवल है, उसके यहाँ पे उसका नेक्स्ट सपोर्ट है, विच इज करंटली वेयर बैंक निफ्टी इज. ये नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल है और नेक्स्ट की रेजिस्टेंस जो है वो है 55 800. अगेन बैंक निफ्टी फास्ट मूव करता है एंड दिस इज अराउंड 4-5%. तो ये तो वो इजीली कवर कर सकता है, इसलिए नेक्स्ट कमिंग वीक में दिस इज द लेवल टू वॉच फॉर. क्योंकि मैंने जैसे निफ्टी के टाइम बोला था, शॉर्ट टर्म बुलिश साइंस आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म में बाइंग हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. बट अगेन इट विल अगेन फॉलो द bearish trend. So that was it for this video. If you like this video, please do share and subscribe and like the video and share it with people who are traders who would want short and crisp analysis of Nifty and Bank Nifty. Options और futures traders के लिए अच्छा है. Again, this is Anmol Bapat and thank you for watching Whale Capital.